नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है 28th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। ये प्रैक्टिस टेस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि दोनों ही सिलेबस में, साइंटिस्ट बी के सिलेबस में और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक्स है, मैं उनको इस पे ले रही हूँ और इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 क्वेश्चन है। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई channel, please do subscribe for more such practice tests. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. So please don't forget my Guru Dakshina. There's no other fee that you have to pay for this free resource. Question number 1. Which of the following is not a means to reuse wastewater? इनमें से कौन सा वेस्ट वाटर को रियूज करने का तरीका नहीं है? ए इरिगेशन, सी कूलिंग इन इंडस्ट्रीज, सी B, cooling in industries, C, groundwater recharge या D, drinking water. Correct option is D, drinking water. ये वेस्ट वाटर के रीयूज का तरीका नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करना होगा और रिसाइकलिंग का मतलब होता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना इस लेवल तक कि वो ड्रिंकिंग वाटर के लेवल तक आ जाए। बाकी जो वेस्ट वाटर होता है वो अपने आप में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद ही इरिगेशन, कूलिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूजफुल हो जाता है। तो ये तीनों ही रीयूज का तरीका है, पर डी ड्रिंकिंग वाटर रीयूज का तरीका नहीं है। इसके लिए पानी को वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करना पड़ेगा। सो irrigation, cooling and groundwater recharge, all three are good means to reuse wastewater. By reused wastewater, I mean that wastewater treated up to a certain extent so that it could be reused easily in irrigation, cooling in industries and groundwater recharge. But for drinking water, that wastewater will have to be given special treatment and treated up to the standards of drinking water. So that will be a recycling process and not just reuse. Okay. Question number 2. Which of the following are likely to be essential strategies for the conservation of water in the future? इनमें से कौन सा है जो आगे भविष्य में सही रणनीति होंगे पानी को जल संरक्षण के लिए? ए रीयूज, बी रिसाइकलिंग, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। रीयूज और रिसाइकलिंग दोनों। रीयूज मतलब वेस्ट वाटर को एक सर्टन लिमिट तक ट्रीट किया और फिर आप उसको फिर से यूज कर गए इरिगेशन, कूलिंग या ग्राउंड वाटर रिचार्ज में। रिसाइकलिंग मतलब आपने वेस्ट वाटर को पूरी तरह से ट्रीट किया और उसको ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड पे या फिर किसी और यूज जिसके लिए आप लाना चाहते हो, उस डिस्टिल वाटर के या लैब वाटर के यूज में आप लाना चाहते हैं, तो उस स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट करने के बाद उसको पानी को पूरा रिसाइकिल करने के बाद और फिर आप यूज करें। और फ्यूचर में ये दोनों ही स्ट्रैटेजी जरूरी होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो कि पानी की इतनी किल्लत झेल रहे होंगे क्योंकि उनको वेस्ट वाटर को रीयूज ही नहीं, रिसाइकिल भी करना पड़ेगा। So both reuse and recycling would be strategies for the conservation of water in the future. So so C, both A and B are correct options. Reuse, I have already explained what reused is. Reuse is, recycling is to retreat the wastewater to such a degree that it becomes fit for either drinking purposes or other specific like lab purposes, etc. And you will have to do that in future, because in future there will be cities in every country of the world that will be facing such shortage of water that there will be no other choice left but to reuse as well as to recycle wastewater to a point so that it could be used for drinking. And that's already happening in different cities of the world. So both A and B. What is smelting? A process of extraction of metal from its ore? Yes. Usually involves heating the ore at a high temperature in the presence of a reducing agent? Yes. C, heating at high temperature leads to melting of pure metals and separation of impurities? Yes. D, all of the above? Yes. So smelting जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो ओर होता है, ओर वो मिनरल होता है जिसमें कि मेटल्स की मैक्सिमम बहुतायत होती है। तो वैसे ओर को बहुत ही हाई टेम्परेचर में एक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम गलाते हैं। जब रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो जो मेटल होता है वो रिड्यूस हो जाता है और प्योर मेटल अलग हो जाता है, और जो इम्प्योरिटी होती है वो गैस की तरह या फिर सॉलिड स्लज की तरह, स्लज मतलब कि सेमी सॉलिड टाइप स्लज की तरह, वो गाज की तरह वो इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं। तो हाई हीट पे रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में मेटल के ओर को गरमाया जाता है, मेटल अलग, इम्प्योरिटीज अलग, यही होता है स्मेल्टिंग। सो डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. What are the parameters used to measure rate of depletion of mineral resources? Sorry, I'm still not totally recovered from my bad health. A, per capita mining? Yes. Per capita consumption? Yes. C, both A and B. ठीक है।
तो कौन से पैरामीटर्स हैं जो मिनरल रिसोर्स की डिप्लीशन की, किस रेट से मिनरल रिसोर्स खत्म हो रहा है, उसको मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? पर कैपिटा माइनिंग, ये कि उस एरिया में जितने लोग रहते हैं उसके उसके मुकाबले कितना मेटल को हम जमीन से, खदानों से निकाल रहे हैं, पर कैपिटा माइनिंग। पर कैपिटा कंजम्पशन, कि जितना हमने मेटल को जमीन से, खदानों से निकाला है, उसमें से कितना मेटल हमने एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज किया है, पर कैपिटा कंजम्पशन। और ये दोनों ही पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं मिनरल डिप्लीशन को मापने के लिए। सो सी बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट रिन्यूइंग रिसोर्स? इनमें से कौन सा है जो सबसे जल्दी दोबारा बढ़ जाता है? बैम्बू, ग्राउंड वाटर, हार्डवुड या कोल? कोल तो एनीवेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार खत्म हो गया तो फिर वो खत्म ही हो जाएगा। बैम्बू, बांस, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन का पानी, और हार्डवुड मतलब कि कोई भी पीपल, आम, इन सब की लकड़ी। तो ये तीनों ही रिन्यूइंग रिसोर्स है कि अगर आप इनको निकालते हैं तो दोबारा ये रिन्यू भी होते हैं। लेकिन सबसे जल्दी बैम्बू रिन्यू होता है, कि अगर आपने बांस का एक पेड़ काटा है, बड़ा सा 20 फुट का बांस आपने काटा, अगले साल आपको उसी जगह 20 फुट का एक दूसरा बांस मिलेगा, तो ये बहुत जल्दी रिन्यू हो जाता है बैम्बू, और ये बहुत तेजी से फैलता भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो fastest renewing resource is bamboo. It is the fastest renewing resource. Please remember this question could be asked. Question number 6, what is the approximate value of a 50-year-old tree? 50 साल पुराने पेड़ की लगभग कितनी वैल्यू होती है? 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख या 20 लाख से भी ज्यादा? करेक्ट ऑप्शन इज डी, मोर देन 20 लाख। 20 लाख से भी ज्यादा वैल्यू होती है 50 साल पुराने ट्री की, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, वो ट्रांसपिरेशन करता है, वो छाया देता है, उसकी लकड़ी की वैल्यू होती है। तो पेड़ों की बहुत तरह की वैल्यू होती है, तो इसलिए जो 50 साल से ज्यादा पुराना कोई भी पेड़ है उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो पुराने सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो हमेशा से इस्तेमाल किए जाते रहे, जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, हमेशा से इसको हम पावर सेक्टर में यूज करते हैं, वो होता है कन्वेंशनल, पुराने समय से जो चला आ रहा है। नॉन कन्वेंशनल मतलब नए दौर की एनर्जी रिसोर्स, वो कौन, उसको क्या कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नाइदर रिन्यूएबल नॉर नॉन रिन्यूएबल, या डी नन ऑफ द अबव? Non-conventional sources of energy are the new sources of energy, and those are the renewable sources of energy, like solar power, wind energy, hydel power, hydrogen. These are renewable sources of energy. These are the non-conventional sources of energy. ठीक है, conventional sources of energy are also called, conventional means ancient time, things that have been used since ancient times, and those are non-renewable sources of energy like coal, petroleum, etc. Those have been used for centuries now, and those are non-renewable sources of energy. So conventional sources of energy को कहते हैं non-renewable sources of energy, क्योंकि वो पुराने समय में से चला आ रहा है और पहले से हम उसको पावर सेक्टर में यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। पर जो नॉन कन्वेंशनल है मतलब वो नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब पुराने दौर का, नॉन कन्वेंशनल मतलब नए दौर का। ठीक है, तो ये अंतर हमेशा समझिएगा, और वो अंतर को समझ के ही इन क्वेश्चंस को आंसर कीजिएगा। सो कन्वेंशनल मींस सिंस प्रिमिटिव टाइम, ओल्ड। नॉन कन्वेंशनल मींस न्यू। So always understand this difference before answering these questions. I specifically put this question here because this could be a trick question on the exam. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the most abundant natural resource? A, coals, B, petrol, C, natural gas, या D, LPG? Correct option is A, coal. Of all these resources, coal is the most abundant natural resource. तो इनमें से जो भी है, कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस और एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें से सबसे अबंडेंट कौन सा है? कोल। कोल सबसे अबंडेंट है, क्योंकि सबसे देर सबसे जो है आसानी से कोयला फॉर्म होता, कोयले के बाद पेट्रोल, पेट्रोल के बाद गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? इसमें से किसको भविष्य का फ्यूल कहा जाता है? मेथेन, एलपीजी, कोल या हाइड्रोजन? करेक्ट ऑप्शन इज डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज द very abundant element. It is present in water. You can always use extract it from water. तो पानी में होता है, 3/4 समंदर है, तो हमेशा ही पानी से आप हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, कि जब सारे एनर्जी सोर्सेस खत्म हो चुके होंगे, कुछ नहीं बचेगा
कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एलपीजी, इनमें से कुछ नहीं बचेगा जब, तब भी हाइड्रोजन बचेगा क्योंकि पानी है, 3/4 तो पानी ही है, तो पानी से हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बिकॉज देयर इज abundant water on earth and hydrogen can always be extracted from that water. I hope what we discussed today was pretty useful for you. In case you have any doubts or you have any suggestions, please let me know in the comments below. और गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो का सिलसिला हमेशा ऐसे ही जारी रहे तो गुरु दक्षिणा के तौर पर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी रिस्पॉन्स मिले और मुझे लगे कि एक्चुअली लोग देख रहे हैं और मैं और वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग माय चैनल।